Hello everyone, my name is Mukul Khandelwal. I have secured AIR 229 in UPSC CSC 2024 and I will be sharing my strategy, my introduction and all the advices which I have learned from my experience of 5 to 6 years. So first of all, an important disclaimer that whatever I am sharing is based on my experience and ये जरूरी नहीं है कि it will work for you. So you need to take care that all the things which I said अगर वो आपके रेलेवेंट हो तभी आप फॉलो करें वरना और टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देख के यू कैन फॉलो वॉट एवर यू लाइक ओके प्लीज डोंट फॉलो ब्लाइंडली एनी टॉपर ओके सो लेट मी स्टार्ट सो अगेन hello everyone my name is Vipul Khandelwal. I'm from Jaipur, Rajasthan. Currently I'm working in Indian Oil as an assistant manager. This was my fourth attempt, and I have secured AI 229 in this attempt. Also, currently I'm living in Mumbai. This is my short introduction. Uh, After that, I'm sharing my journey. I have started my preparation in 2021. At that time, I have given first prelims. So extra itna preparation था नहीं, so I was not selected in the prelims. After that, on the second prelims, that was on 2022. उसकी थोड़ी प्रिपरेशन की थी तो at that time I was selected and I have chosen mathematics as an optional initially because I thought that my background is from engineering and I have computer science in my BTech. So I thought कि maths is slightly more related to my background and I was very good at maths. That's why I've chosen maths. Also, there are advices given by my fellow colleagues as well as seniors that in maths you can score very high. So because of that, I have chosen mathematics as an optional. So in 2022, I have cleared prelims, and after that, I have given mains, but I was not selected at that year. After that, in 2023, I have also given prelims and cleared the prelims, but in the mains, I again was not selected. So, introspect my planning, my strategy, everything. I was also shattered that I'm not able to clear mains repetitively because that was my third UPSC attempt. Uh, then I thought that maybe because I was not getting good marks in mathematics as optional, I was getting very lower marks. And if I talk about my GS scores, it was fairly good. So if I scored very good in optional, I can be selected. So at that time, I have discussed with my colleagues as well as my seniors that whether I should change my optional or not. I'm also introspect that if I choose a maths as an optional, then maybe it can happen that I will be not be selected in UPSC CSE. So at that time, I've taken a big step in December 2023 that I will be changing my optional to sociology. So in fourth attempt, I have changed my optional to sociology. And in 2024, I have given again CS BPSC and I cleared prelims, I cleared mains, and then in interview also I cleared and then secured a rank of 229. That is my journey so far. Also, I want to tell you all that I'm a working professional from the beginning. I have started my preparation in 2021, but I am working from 2018 in Indian Oil Corporation. And my college was NIT Surat, and I have done BTech in computer science in NIT Surat. After that, if I share my strategy, so first of all, I am a working professional. I was working professional. I am working professional. So uh, I don't have lot of time. So I have focused on reading very less content, but very efficiently, so that I can have multiple revisions. And उस multiple revisions के बाद I can reflect whatever I read in my notes to the examination. So I always believe that uh, people or aspirants should not read a lot. They should restrict themselves to certain sources. Those sources need to be revised again and again, multiple times. And those notes, whatever you read, should reflect in your answer copy. That is my philosophy. So, and also I have a time paucity because I was working professional. I am working professional.
So I cannot dedicate it full time to UPSC as I have professional obligation to my company as well. So my strategy was to have very less content. So for that, if I talk about my sources, for that I have opted Lakshmikant. I have read Lakshmikant for the polity and constitution part, and I have read Spectrum for modern history. Other than that, I have not read any of the books. I have solely relied on coaching material or toppers notes. So, so basically, I want to convey that uh, whatever sources you are follow, you should be confident about it. You should not think about that if you follow these type of sources, you will not be selected, or the toppers are following those sources, that's why they are selected. It does not reflect like that. See, if I give my example, I have only read these two major books. Other than that, if I talk about NCRT, I have only seen geography videos of NCRT and not read any NCRT in any of the year. Okay, so it all depends on yourself. I s- I advise you all to read NCRT, but I'm just sharing my strategy what I used to follow. So for prelims, if I talk about prelims and mains is an integrated thing, so you need to read both at the same time. But whenever prelims comes closer, you need to switch from mains to prelims because there are specific topics which will not be asked in your UPSC mains, but it will definitely can come in your UPSC prelims. So this you need to understand that at certain point of time you need to switch from mains mode to prelims mode. So I have done integrated thing. I have read GS1. Like if I talk about geography, I have referred online source that is PMFIS. इस पे you can refer online. वहाँ पे geography के बहुत अच्छे अच्छे notes हैं. Other than that, for GS1 in geography, I have seen Amit Sengupta. You can search Amit Sengupta geography lessons. So उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है NCERT basis पे. So I think उससे your geography will be clear. Other than for history के लिए for modern history I have read Spectrum book. And for ancient and art and culture, I relied on Topper's notes, not read any book. If I talk about GS2, GS2 में लक्ष्मीकांत पढ़ी है. उसके बाद some topper notes I have read. Other than that, coaching materials for all the GS I have added coaching materials. I have joined the test series in the means. So उसमें जो जो कंटेंट मुझे लगता था कि that can come in exam, I take a snippet of that and I paste on my digital notes. So उस पे मैं heavily rely करता था. GS3 also, I totally rely on coaching material. That is the mains part. So the mains test series and mains classes, the quality improvement programs which are run by different coaching companies, institutes. So for GS4 also, I rely heavily on coaching institute. I have not read any book for uh, for GS subject. For GS4, I have solely relied on the notes which are shared in the coaching. And for essay, I think if you read GS4 very good, बहुत अच्छे से GS4 if you do, then your essay can be improved. But आपको essay का कैसे लिखना है, that you need to be carefully understood. So उसके लिए you need to have a clear setup or you need to sit with some teachers कि यहाँ पे जिससे आप discuss कर सकते थे what things needs to improve. Okay. So these are my GS strategy. As you see कि मेरे पास ज़्यादा sources नहीं है बताने के because मैंने ज़्यादा sources पढ़े ही नहीं. You can find multiple sources from other stoppers, but I have not read it. That's why I am not saying it. If I talk about prelims maybe I heavily relied on coaching materials and toppers notes. So just give an example. Like if I talk about polity, there was a topper Mandar Patki from 2019. So he has created one short snippet for polity, modern history, art and culture, and ancient history. तो वहां से मैंने उनका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था एंड आई हैव रेड दोस पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स. सो उससे मेरा प्रीलिम्स का सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत हो जाता था. अदर देन दैट कोचिंग की पीपीटीज मैं पढ़ लेता था. आई डोंट वॉच वीडियोज ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. आई जनरली रिफर ऑल द पीपीटीज विच आर गिवन बाय दैम. उस पीपीटीज को पढ़ लेता था, जो जो इम्पोर्टेंट लगता था मैं उससे पढ़ लेता था. इफ आई फाउंड दैट
something more needed on those topics. So मैं Google Chrome या फिर इंटरनेट का यूज करके उसके स्मॉल स्निपेट बना लेता था. So this was my strategy. Very simple. I have relied solely on toppers notes and coaching material. वो भी सिर्फ mains specific. Use internet excessively, and yeah, that's it. If other than GS, if I talk about sociology, initially I was having maths as an optional, so वो तो मेरा बहुत struggle था. Maths में I was not able to score well, जिसकी वजह से मैं मेंस में हमेशा दो बार तो अटका ही. उसके बाद in I have taken sociology as an optional. For that I have solely relied on sleepy classes notes. वहाँ पे sleepy classes की notes I was having foundation notes. So I have read 3 to 4 times those foundation notes. Other than that, uh, उनकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी नाम से, तो आई हैव सीन दोस प्लेलिस्ट. एंड also you all should all not should you all must focus on the PYQs. You must read PYQs before starting any optional or any GS, so that you can have a larger or broad idea that what things needs to be done. While reading, you can relate that this type of question has been asked in uh, मेंस समवेयर. तो वो थोड़ा रेलेवेंस रहेगा, तो इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप या तो पीवाईक्यूज ओनली फॉर ओनली क्वेश्चंस यू शुड प्रिंट आउट ऑल द पीवाईक्यूज. फॉर जीएस यू कैन डू फॉर 5 to 6 years. For optional you should do 10 to 15 years. If I talk about myself, I have read Disha book. There is a one book Disha of past 15 years, questions and answers topic wise. So I have read those 15 years PYQs of sociology, and also sleepy classes notes. So that is on. Now, if I talk about my marks, I have scored 965 in total in UPSC, in which my optional score was 270 and my GS total score was 808. Uh, what in GS4 I have scored pretty well. I have scored 131, and I am not able to score in GS3 very good. So that's why I don't advise on GS3. I advise on GS4 and also on optional like sociology. After that, my strategy is this only. I focus on very less content, multiple revision, broadening my mind to identify multiple dimensions, again and again focus on the PYQs. This was my strategy. Now, I also want to give all of you a brief about UPSC, as I think many of you are planning to start UPSC preparation. So UPSC has 3 stages. First is prelims, second is mains, and third is interview. So in prelims there are 2 papers. One is BS paper, and second is CSET. CSET is a qualifying paper, and in mains, there are 9 papers. Two are qualifying papers in English and any official language paper, and 7 papers are papers which whose marks uh, are added in your rank. So in these 7, there are 4 GS papers. One is the and one essay, and other than that, there are 2 papers of optional. This is the and after mains there is an interview space. Interview space consists of 275 marks, and the GS the mains have 250 marks for each paper, and the qualifying paper which I have talked about, 2 qualifying paper, they have 300 marks. So you need to just qualify those papers. So this is all about the UPSC. You can search more about UPSC pattern and UPSC syllabus, or whatever you find that how UPSC conduct exams, so you can have a greater idea. And I've just shared briefly about UPSC. Now, some more thing I want to share, how I select my optional. So if you see, initially I have selected mathematics as my optional. Okay, so my optional, it was a bad decision for me because I was influenced by some people that are very good at maths, and they are also very good at maths, and we all can clear UPSC from maths. So that was not my informed decision. So uh, so I highly recommend that whenever you are taking any option, don't rely on anyone. You just choose
वॉट एवर यू फील दैट यू कैन स्कोर ऑन दैट ऑप्शनल, आप उसका सिलेबस पढ़िए, सिलेबस को सोचिए कि इसमें पढ़ने में आपको मजा आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको मजा नहीं आएगा तो यू शुड थिंक अगेन। टॉपर्स की वीडियोस देखिए, उन्होंने कौन कौन से ऑप्शन लिए हैं, डिफरेंट ऑप्शन लिए। So because option selection is very important, you see, if you see my journal, due to optional, my 3 years was wasted. So in this year I have changed my option. So there may be case that मैं अगर सोशियोलॉजी ऑप्शन लेता इनिशियली, मे बी आई वाज सिलेक्टेड अर्लियर, बट उल्टा भी हो सकता है, सोशियोलॉजी लेता तो भी सिलेक्ट नहीं होता। सो बोथ केसेस आर देयर, बट मैंने ऑप्शन चेंज की है। दैट मीन्स आपको ऑप्शन लेना है तो शुड बी इन्फॉर्म डिसीजन, एंड द डिसीजन शुड बी योर्स ओनली, solely yours, not others. Okay, so this is also for, while selecting your optional, just go to UPSC notification, download the notification, you can see multiple optional, वहां पे उसका सिलेबस दिया होता है। आप जो जिस जिस ऑप्शनल में आप सोच रहे हो कि यू आर इंक्लाइन टू दैट ऑप्शनल, आप उसके उसका सिलेबस या तो प्रिंट आउट करवाइए या फिर डिजिटली उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए ऑप्शनल लेने से पहले कि ये ऑप्शनल है, ये इसके पार्ट्स है, ये चैप्टर्स है, और आप कैसा फील कर रहे हैं उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद। उसके बाद भी इफ यू फाइंड कंफ्यूजन कि यार देर आर 2 3 ऑप्शनल जिसमें से एक चीज करनी है मुझे, उसके बाद यू कैन गो टू उसके पीवाईक्यूज, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पीवाईक्यूज किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। आप टॉपर स्टॉक्स देख सकते हो उस पर्टिकुलर ऑप्शन का, उसके बाद यू डिसाइड दैट ये ऑप्शन मेरे को लेना है। सो इन्वेस्ट सम टाइम, डोंट बी हरी कि मुझे ऑप्शन लेना है, मुझे जल्दी यूपीएससी स्टार्ट करना है, मुझे जल्दी से आईएएस अफसर बनना है। ऐसे आप हरीडली कोई डिसीजन मत लीजिए। इट्स बेटर टू टेक a very good decision, give some time, because optional is very important. It consists of 500 marks, and people are scoring above 270. Okay, then only you can get a very good rank. Okay, so optional selection is very important. उसके बाद if I talk about my optional was sociology. So sociology में, as all option has two papers, sociology has also two papers. First paper is like international type, इसमें multiple thinkers होंगे, mostly from western philosophers हुए, वो सारे philosophers होंगे। And the paper two is generally more about Indian, कि इंडियन थिंकर्स क्या है, इंडियन की सोसाइटी कैसे वर्क करती है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट थिंग्स, लाइक योर पर्सपेक्टिव ऑन पास्ट, थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऑन पास्ट टाइप्स, कैसे इसका जेनेसिस हुआ था, कैसे कैसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, नेशन स्टेट की क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी यूनिक, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एक्चुअली आई लाइक इट अलॉट। मैं अभी भी उस सोर्सेस को पढ़ता रहता हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो यू विल फील कि uh, आपके आसपास जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही है या कितनी भी सोसाइटी में इल्स है, यू विल सी दोज इल्स विद अ डिफरेंट एंगल। आप इसको जनरल लोगों की तरह से नहीं देखेंगे, नॉर्मल पीपल की तरह कि ये हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। यू विल फाइंड मल्टी डायमेंशनल थिंग, यार ये हो रहा है, दैट मीन्स सम जेनेसिस इज देयर बिहाइंड दिस इशू। और उस जेनेसिस को आप अपने ही पर्सपेक्टिव से नहीं, बहुत और लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि अगर मैं ये होता तो माइट बी ये आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता। तो दिस सब्जेक्ट ब्रॉडन्स योर माइंड और ब्रॉडन्स योर थिंकिंग, आई थिंक। तो इसलिए आई थिंक सोशियोलॉजी इसलिए हेल्प किया। उसके अलावा in like in humanities there are optional, like humanities based optional and technical option. So mathematics, mechanical engineering, civil, these come under technical optional, and sociology, anthropology, political science, and etc. all comes under humanities optional. So अगर आप ह्यूमैनिटीज के ऑप्शन लेते हो तो आपको ये बेनिफिट रहता है कि आप बहुत ब्रॉड सोचना शुरू कर देते हो। तो ये कभी कभी रिफ्लेक्ट करता है आपके आंसर राइटिंग में एज वेल। जब आप जीएस के आंसर्स लिखते हो, यू फाइंड कि यार इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो इट हेल्प्स यू। एंड वही आप टेक्निकल लेते हो तो उसमें थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि उसका उससे आपका ब्रॉडर कम होता है माइंड। जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, मैथ्स में सिर्फ मैं मैथ्स ही करता रहता था, तो उसमें जीएस का कोई हेल्प हो नहीं पाता था और सोसाइटी का भी पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता था। बट अगेन की टेक्निकल ऑप्शन में बहुत हाई स्कोर भी होता है, लोग 320 330 340 छोड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट सोली डिपेंड्स ऑन यू। कि टेक्निकल के अपने एडवांटेजेस है, ह्यूमैनिटीज के अपने एडवांटेजेस है। तो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस,
you should opt, sorry, you should opt for an optional. Okay. So, second, other thing I want to discuss about means answer writing. So, many question I doubt that if I'm selected in prelims, how I will write mains. मैंने तो कभी क्वेश्चन आंसर लिखे ही नहीं है. मेरी तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है. आई एम नॉट एबल टू राइट 2 pages. आई एम नॉट एबल टू राइट 3 pages. मैं लिख रहा हूँ उल्टा सीधा लिख रहा हूँ. माई ग्रामर इज नॉट गुड. मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है. मेरे को हिंदी में नहीं लिखा जाता जो हिंदी बैकग्राउंड से है. तो ये सारे डाउट आते हैं. सो आई आई वांट टू से कि जितने भी आपके डाउट है, सेल्फ डाउट है, उन सबको आपको भूलना पड़ेगा. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच इज वेरी बिग बिग थिंग, तो आपको सेल्फ डाउट अपने ऊपर लाना ही नहीं है. ओके, दैट शुड बी वेरी क्लियर. आपको सोचना है हर बार कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. अगर आपका 2 पेज का आंसर है, 2 पेज में नहीं लिख पा रहे हो, 1 पेज पे रहा है, तो भी यू नीड टू थिंक कि नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं हो जाएगा. एंड तक यू विल फाइट. ओके, सो डोंट थिंक अबाउट मेरी राइटिंग बेकार है, मेरे को लिखा नहीं जा रहा है. You need to do hard work because people are putting their 200% to this exam. So there is very high competition. So आपको भी उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा. विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क यू कैन नॉट सक्सीड इन एग्जाम. कोई शॉर्टकट तो है नहीं. हार्ड वर्क तो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी. सो यू नीड टू पुट योर हार्ड वर्क. अगेन आफ्टर हार्ड वर्क देयर इज वेरी बिग रोल ऑफ लक एज वेल आई से. बट आपको जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको सबको करना पड़ेगा. मेंस में आई विल से कि अगर मेंस की आपको आंसर राइटिंग करनी है तो फर्स्ट बेसिक सब्जेक्ट यू शुड एंड फर्स्ट. जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है लाइक ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, एथिक्स वाला चैप्टर हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो दीज मेजर स्टेप यू शुड फिनिश फर्स्ट बिफोर आंसर राइटिंग. सबका अलग स्ट्रेटेजी होता है, ये मेरा स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. आप इनको फिनिश करो, उसके बाद यू गो टू आंसर राइटिंग. और उसके बाद आंसर राइटिंग में जो भी हिकअप्स आएंगे, आपको आपको लिखा नहीं जा रहा, आपको वो हो रहा है, रिमेंबर वन थिंग कि आपने अगर अभी से स्टार्ट किया तो 3 महीने बाद यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट. यार आपका लिखने का स्टाइल थोड़ा बढ़ चुका है, आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी है, आप थोड़ा ज्यादा सोच पा रहे हो, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको अपने आप मिलेंगे. उसके लिए कोई आपके पास रामबाण नहीं है. वो आपको प्योरली हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेन सेंसर राइटिंग के लिए. मेन सेंसर राइटिंग के लिए प्योर हार्ड वर्क चाहिए. तो आपको अपना हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा. 7 मिनट में आपको आंसर कंप्लीट करना है 10 मार्क्स, 11 मिनट में 15 मार्क्स. तो वो आपको पूरा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. एंड आई एम सेइंग यू कि मैंने किया है. आई हैव डन इट विद वर्किंग प्रोफेशनल. और मेरी भी राइटिंग ज्यादा अच्छी थी नहीं, फिर भी मैंने किया है. तो यू ऑल कैन डू इट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ओके. So other than sources, I have already shared the sources. In my advice, your sources should be very limited. आपको कभी भी सामने वाले का नहीं सोचना चाहिए कि आपके कोचिंग में या आपके आसपास लोग क्या पढ़ रहे हैं. बहुत सारी कोचिंग मटेरियल रिफर कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर. कोचिंग वाले पेपर नहीं बना रहे हैं. द पेपर वॉज मेड बाय यूपीएससी. और यूपीएससी लेवलर है, वो सबको लेवल में ला देगी, चाहे आपने बहुत अच्छी कोचिंग से पढ़ाई की हो या आपने सेल्फ स्टडी की हो. So बी कॉन्फिडेंट, स्टिक विथ वन सोर्सेज. अगर आपको वन सोर्सेज नहीं हो तो टेस्ट सीरीज में यू कैन ट्राई कि मल्टीपल सोर्सेज पढ़ लो, मल्टीपल टेस्ट दे लो. बट ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिटी आपने इंस्टीट्यूट से पूरी पढ़ ली, उसके बाद आप सेकंड इंस्टीट्यूट में गए, वहां से पॉलिटी पढ़ ली, तो दोनों पसंद नहीं आया तो तीसरे इंस्टीट्यूट में गए, उससे मेन्स को कोर्स ले लिया और वहां से वापस पॉलिटी पढ़ ली. तो दैट विल नॉट वर्क. किसी किसी का वर्क हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वैसा नहीं करना चाहिए. यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट. दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम. ये आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है. इसको आप फालतू वेस्ट नहीं कर सकते. पुट योर 100% इन वन अटेम्प्ट, 1 ईयर. उसमें नहीं होगा तो सेकंड ईयर वापस करना जितना हो सके. लेकिन ये टाइम बहुत क्रूशियल है बिकॉज यही टाइम है जब आपको जॉब लगना है, यही टाइम है जब आपको करियर बनाना है, यही टाइम है जब आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आएगी, बहुत सारे प्रेशर आएंगे फैमिली की तरफ से, कंपटीशन वर्ल्ड की तरफ से, आपके फेलो एक्सपीरियंस की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा. तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्या सही है. कभी भी किसी और के कहने पे अपने आप को ये नहीं समझना, इंफीरियर नहीं फील करना कि नहीं यार ये नहीं पढ़ूंगा तो मेरा होगा ही नहीं, ये नहीं पढ़ा तो मेरा होगा ही नहीं, टॉपर्स ने ये पढ़ा है तो उनका हो गया, टॉपर्स ये नहीं पढ़, अगर मैं टॉपर्स जैसा नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होगा. डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. ओके, दैट्स माय एडवाइस. Second is for optional. I have already told that I have the first Slippy classes and the Disha 15 years PYQ. Abhi to Slippy classes has also released their 15 years PYQ PDF in their website, so you can refer
to their website and download it. So फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप जो भी ऑप्शन ले रहे हो उसकी सिलेबस निकालो एंड और पीवाईक्यूज निकालो. पीवाईक्यूज आर अवेलेबल फ्री इन एवरी वेबसाइट. हर ऑप्शनल की पीवाईक्यूज फ्री अवेलेबल है. वहां पे जाओ, पीवाईक्यूज डाउनलोड करो और पीवाईक्यूज को रीड करो. ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. पीवाईक्यूज एंड सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जीएस का भी एंड आपके ऑप्शनल का भी. ओके, मेंस के लिए. ओके, एंड वन मोर थिंग कि अभी वी हैव सीन कि सीसेट पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं. सो आई हैव told you that in prelims there are two papers, one is GS and second is CSET. तो CSET में भी लोगों को बहुत इशू आता है. CSET में जनरली आपकी मैथ्स आती है, लॉजिक कॉम्प्रिहेंशन आता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का जो भी आपको क्वालिफाई होता है. तो उसमें मैथ्स में इशू आता है लोगों को. तो उसमें आई विल एडवाइस कि आप अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड में हो तो आपको थोड़ा कम सोचने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आपको 5 to 6 ईयर पीवाईक्यू करना है अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है. अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हो तो तो आपको बहुत अच्छे से करना है कि सीसेट की वजह से बहुत सारे लोग रह जाते हैं, बहुत सारे टॉपर्स रह जाते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर सीसेट में अच्छा करके एक अच्छी रैंक लेते हैं. तो सीसेट को कभी भी लाइटली नहीं लेना. अगेन सीसेट को हमेशा मेन स्ट्रीम भी नहीं करना कि जीएस की आपने प्रिपरेशन छोड़ दी और आप फुल्ली फोकस हो रहे हो कि मैं सीसेट ही करूँ, वैसा भी नहीं करना. तो यू नीड टू डिसाइड कि सीसेट बहुत जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आप जीएस की साइड में रख के सीसेट पे बैठ गए. ठीक है, तो सीसेट के लिए अगेन सजेस्ट की शून्य एस की पीवाईक्यूज होती है और उसमें उन्होंने सीसेट के पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. वो पीवाईक्यूज मैथ्स का है, तो यू कैन गो थ्रू दोस पीवाईक्यूज. उसमें सिंपल ट्रिक्स बताइए, उसको कर लो. और सीसेट की कोई भी टेस्ट सीरीज है उसके 5-6 पेपर लगा लो. और जरूरी नहीं है वो लगाओ, बिकॉज बेस्ट थिंग तो यही रहता है यूपीएससी के पीवाईक्यूज लगाओ. तो यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज है सीसेट के वो लगा लो, मतलब 4 से 4 to 5 ईयर. सिमिलरली फॉर जीएस ऑल्सो उन प्रीलिम्स पीवाईक्यू शुड बी डन फॉर 8 to 9 ईयर्स. वो आपको करने ही पड़ेंगे और वो आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा. ओके, और मेंस के सोर्सेज मैंने बता ही दिया आपको कि मैं हाईली रिलाई करता कोचिंग मटेरियल में. तो मैंने राउंड्स करके कोचिंग की, उसका क्यूआईपी लिया था, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. अभी तो आई डोंट नो हाउ इट एग्जिस्ट और नॉट, बट उनके टीचर्स काफी अच्छे थे. टीचर्स हैव शिफ्टेड टू डिफरेंट कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक. तो वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे. तो उन्होंने बहुत अच्छी पीपीटीज एंड मेंटरशिप दिया था मुझे, जिसकी वजह से मेरा जीएस सॉर्टेड था. मैं उन्हीं पे रिलाई करता था. तो आप भी कोई ऐसी आपके अगर इफ यू आर फुल टाइम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई विल से कि कोई फाउंडेशन ही आप करिए. आप अच्छे से पढ़िए, पूरे कोचिंग के जितने मटेरियल उसको पढ़िए. लेकिन अगर आपके पास टाइम की पॉसिबिलिटी है, वर्किंग प्रोफेशनल है, आई थिंक यू शुड डू स्मार्ट स्टडीज, क्योंकि आपके पास टाइम पहले से कम है. आपको फोकस करना चाहिए कम कंटेंट को ज्यादा बार पढ़ के और कंप्लीट करना. ओके, तो स्मार्ट वर्क तो दोनों को करना पड़ेगा, वेदर यू आर फुल्ली प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम और आर वर्किंग प्रोफेशनल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क आपको हर तरफ नहीं डालना, हार्ड वर्क ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स में डालना है, स्मार्ट नहीं डालना है. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू आई ऑलरेडी सेड कि पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. पीवाईक्यूज आपको करने ही है, वेदर इट इज फॉर जीएस, मेंस, प्रीलिम्स, ऑप्शनल. पीवाईक्यूज आपको करने ही है इन एनी हाउ. आप चाहे कोचिंग का कुछ करें या ना करें, पीवाईक्यूज आपको करने ही है. ओके, ओके, वन मोर क्वेश्चन, टॉपर कॉपीज को कैसे एनालाइज करें. आई थिंक पहले तो आप फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट करिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए. ठीक है, टेस्ट सीरीज में मेल कीजिए. उसके बाद यू विल फाइंड कि पेपर्स कैसे लिखते हैं. एक बार पेपर्स लिखना आप सीख गए, देन यू कैन गो टू टॉपर्स कॉपी. वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन से कैसे लिखे जा रहे हैं. एंड आई विल से कि टॉपर्स कोई यूनिकली आइडेंटिफाइड पीपल नहीं होते, कोई आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं आते, वो इसी वर्ल्ड के हैं, इंडिया के ही है, नॉर्मल पीपल है. जब यहाँ इस बाउंड्री पे आ जाते हैं जिसमें यूपीएससी हो जाता है तो वो टॉपर्स हो जाते हैं. ओके, तो उनके भी आप आंसर्स देखेंगे तो आपको बहुत नॉर्मल आंसर्स लगेंगे. कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. कुछ वेरी एक्सेप्शनल होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जिनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है. बट मोस्ट ऑफ टॉपर्स आर वेरी नॉर्मल पर्सन, बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड रहता है. उनके आंसर्स आप पढ़ेंगे तो उनके आंसर्स भी वेरी नॉर्मल होते हैं. तो इसलिए आप जब उनका पढ़ेंगे, आप क्वेश्चंस पढ़िए, खुद के एंड से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए कि इसमें कैसे डायमेंशन हो सकती है. फिर आप देखिए टॉपर्स ने कैसे लिखा है उसने. उसने जैसे लिखा है आइडेंटिफाई करिए कि अगर आप भी लिखिए तो आप कैसे उसको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. उसको कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए.
उसको उसके पॉइंट्स को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसका जो फ्लो आता है, एक आंसर का एक फ्लो आता है, वो आप कैसे अपने आंसर्स में ला सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल टॉपर्स की कॉपीज आप चेक कर सकते हैं। और टॉपर्स की कॉपीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि टॉपर्स हैव समहाउ क्रैक द कोड, कि उनके अगर हर टाइम अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड इफ आई से क्या यूनिकली करते हैं टॉपर्स, इट्स लाइक फ्लो ऑफ आंसर शुड बी वेरी गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पॉइंट आपने यहाँ स्टार्ट कर दी, कुछ पॉइंट वहां स्टार्ट कर दी, कुछ आंसर्स का फ्लो ही नहीं बन रहा। जो क्वेश्चन पूछा है उसको ससेंटली आप एक फ्लो में आंसर दीजिए, और जो पूछा है वही आंसर दीजिए, इधर उधर घुमाए ना। और उसमें आप मल्टीपल पॉइंट जनरेट करेंगे तो अपने आप आपके नंबर आएंगे। ऑल्सो फॉर जीएस स्पेसिफिक ऑल्सो डिफरेंट वेरी करता है। जीएस स्कोर का डिफरेंट वेरी करता है, जीएस अदर जीएस का डिफरेंट करता है, ऐसी का डिफरेंट करता है, राइटिंग टेक्निक। तो जब आप देखेंगे टॉपिक टॉपिक तो विल आइडेंटिफाई कि यार मेरे को जी ऐसे में ऐसे लिखना है, जीएस में ऐसे लिखना है, जीएस स्कोर में ऐसे लिखना है, और ऑप्शन में ऐसे लिखना है, तो विल आइडेंटिफाई दैट पार्ट। ओके, अदर देन दैट नोट्स कैसे बनाए, दैट इज बिग क्वेश्चन, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, मैंने फाउंडेशन कोर्स कुछ किया नहीं है, तो मैंने हमेशा डिजिटल नोट्स बनाए। आई यूज्ड वन नोट एप्लीकेशन, उसमें मैं अपने डिजिटल नोट्स बनाता था। हर टॉपिक को सेग्रीगेट कर लेता था एक टेबल पे, उस टॉपिक को लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में डालता था, उसका कंटेंट सेकंड कॉलम पे डालता था। तो कुछ भी करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ आता था तो आई मेक श्योर दैट आई विल इंक्लूड दैट पार्ट इन माय नोट्स। तो हर एक जीएस में हर एक सब्जेक्ट की डिफरेंट नोट बना लेता था मैं। ओके, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको फिजिकल नोट्स अच्छे लगते हैं तो फिजिकल नोट्स बनाइए, बट रिमेंबर कि आपको डिजिटल में कभी ना कभी शिफ्ट करना ही पड़ेगा। फिजिकल भी रखिए, लेकिन डोंट थिंक कि यार मैं डिजिटल कर ही नहीं सकता, डिजिटल हो ही नहीं सकता, ये तो साईफाई थीम है, ये तो हम कर नहीं सकते। आपको डिजिटल में कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। तो बिकॉज उसके अलग बेनिफिट है, आप कहीं पे भी रिवाइज कर सकते हैं, मोबाइल में रिवाइज कर सकते हैं, सर्चिंग फैसिलिटीज आपको ज़्यादा मिल जाती है, एडिशन ऑफ कंटेंट जल्दी हो जाता है। तो फाउंडेशन नोट्स अगर आपने बना लिए फिजिकली, तो करंट अफेयर्स या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें आप ऑनलाइन सेट कर सकते हैं डिजिटल नोट्स में। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि ऑनलाइन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करना, क्योंकि चैट जीपीटी आ गया है, ग्रॉक आ गया है, मल्टीपल दिस टाइप ऑफ टूल्स हैज कम। वहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर्स मिल सकते हैं। आप अपना आंसर लिखोगे, आप बोलोगे इवैल्यूएट दिस आंसर, दे विल इवैल्यूएट फॉर योर सेल्फ, फॉर आवर सेल्फ, फॉर यू। सो वहां से आपको भागना नहीं है, उसको अडॉप्ट करना है, उससे आपको पूरा बेनिफिट लेना है इस टूल का, बिकॉज मल्टीपल पीपल आर डूइंग दैट। तो आप क्यों पीछे रह रहे हो? आप भी ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करो जो आपको हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन पे। ओके, सो आई थिंक डिजिटल टूल आपको यूज करना चाहिए। अगर आप हेजिटेंट है तो ट्राई करो कि थोड़ा बहुत कम हेजिटेंट हो सके और डिजिटल टूल यूज कर सके। ओके, so now other thing is NCRT. What about NCRT? So to be frank, मैंने NCRT पढ़ी नहीं है, but I will recommend all of you to read NCRT। जो मल्टीपल टॉपर्स ने बोला होगा, आपने अटेंड किए होंगे टॉपर्स के टॉप, उसमें जो जो उन्होंने एनसीईआरटी बताई है वो आप जरूर पढ़े। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मैंने ज्योग्राफी की अमित सेन गुप्ता करके एक सर है, वो जनरल वीडियोस बनाते हैं, बट उन्होंने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के वीडियोस बनाए थे, वो मैंने पूरे देखे थे। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी खुद से बुक से नहीं पढ़ी थी। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी पढ़े। जो टॉपर्स है, दूसरे टॉपर्स, उनका वीडियोस और टॉक सुने कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कब तक की पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़नी है। ऑल्सो आई वांट टू क्लेरिफाई कि आई हाईली रिकमेंड कि आप सबको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कि न्यूज़पेपर एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े थे। तो मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था मेरे न्यूज़ होने के बाद फॉर द इंटरव्यू। वो भी एक न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस। And also I have never read the monthly compilation of any coaching institute। मैं जो ईयरली कंपाइलेशन आती थी उसको रीड करता था प्रीलिम्स से पहले, और मेंस से पहले वो भी सेलेक्टिव ईयरली कंपाइलेशन, नॉट ऑल ऑफ देम। जो जो मेजर सब्जेक्ट्स होते थे उनकी ईयरली कंपाइलेशन करता था। सो बेसिकली आई वांट टू टेल कि ये सब आप पे डिपेंड करता है। देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ता था तो इट डजंट मीन कि आप नहीं पढ़ोगे और आपका हो जाएगा। इफ यू हैव टाइम, you should read newspaper. It is very good thing. It will develop your personality. It will give you different perspective. तो एटलीस्ट आप पढ़ना ही चाहिए आपको न्यूज़पेपर।
सिमिलरली आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, दिस इज माई टॉक, आई एम सेइंग दैट ये पढ़ना मैंने नहीं पढ़ी, ओके, और पढ़ना चाहिए सब, ओके। नाउ let's talk about importance of coaching. So, if I talk about myself, I have not taken any foundation course of any coaching in coaching institute. मैंने सिर्फ मीन्स एक QIP लिया था, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कि राउस का था। उसमें जो जो उन्होंने पढ़ाया वो मैंने पढ़ा था। उसके बाद हाईली रिलाइड ऑन सेल्फ स्टडी एंड इंटरनेट ऑफ कोर्स। तो उसमें जो जो मुझे कंटेंट मिलता था वो मैं अपने डिजिटल नोट्स में ऐड करता था, और उससे जितना मेरा हो पाता था उतना ही मैं करता था। सो इट्स बेसिकली कोचिंग की इम्पोर्टेंस टेस्ट सीरीज में तो बहुत है। जब आप मेंस प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो और मेंस में आते हो तो यू नीड ए टेस्ट सीरीज। तो उसके लिए कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेस्ट सीरीज लिखनी है, ठीक है, और इवेल्युएट करवानी है, उसके फीडबैक पे आपको काम करना है। इन इंटरव्यू ऑल्सो मॉक इंटरव्यू यू नीड टू गिव टू मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट। बट ऐसा नहीं है अगर आप कोचिंग नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल फ्री इनिशिएटिव रन इन यूट्यूब, टेलीग्राम, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल जाते हैं, सारे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा नीड नहीं आएगी कि नहीं नहीं मैं बहुत बड़ी कोचिंग से पूरी प्रिपरेशन करूँ। आप नॉर्मल सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने सेल्फ स्टडी इसलिए चुना क्योंकि मुझे जल्दी निकालना था और मेरे पास टाइम कम था, तो मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता था। बेसिकली आई एम लिविंग इन मुंबई और सारी कोचिंग दिल्ली चल रही है। ऑल्सो वन क्वेश्चन इज टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें। तो what are questions are you are posting in comment section, I will answer in the last. अभी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे पास पहले से हैं वो मैं आंसर कर रहा हूँ, उसके बाद आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए? सो डिपेंड्स कौन सी टेस्ट सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है तो प्रीलिम्स हैपन इन मई और जून, तो मई और जून में प्रीलिम्स हो रहा है तो यू विल स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज इन जैन एंड फेब, ओके। और मेंस की टेस्ट सीरीज डिपेंड्स कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आपके पास कितना टाइम है। इट्स प्रेफर कि मेंस की सेक्शन टेस्ट आप मेंस से प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट कर लो, लाइक दिसंबर नवंबर। बट कभी कभी नहीं हो पाएगा तो उससे घबराना नहीं है, प्रीलिम्स आप दो अच्छे से, उसके बाद मेंस में आप टेस्ट सीरीज बाय करो। टेस्ट सीरीज इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। टेस्ट सीरीज के बिना निकालना इट्स वेरी टफ। निकल तो सकता ही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको इवेल्युएशन बहुत हेल्प हो जाता है, आप बहुत लिखने की आदत हो जाती है, तो एट दैट टाइम यू शुड ऑप्ट फॉर टेस्ट सीरीज। मैंने क्या किया था, मैंने टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के बाद ही ली थी। और इफ आई टॉक अबाउट दिस 2024 अटेम्प्ट, मैंने जीएस का एक भी पेपर नहीं लिखा था। मैंने ओनली विजन आईएएस का एक अभ्यास होता है, सिर्फ उसी का जीएस का आंसर्स लिखा था, उसी का टेस्ट लिखा था। वो भी एक टेस्ट लिखा था हर जीएस का। एंड ऑप्शनल का मैंने टेस्ट सीरीज ली थी क्योंकि मैंने चेंज की थी मैं ऑप्शन फ्रॉम मैथ्स टू सोशियोलॉजी, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन ली थी और मेरा 70 to 80% आई हैव गिवन टू ऑप्शनल। How one questions which comes in your mind, everyone's mind कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। So I will highly recommend कि घंटे का खेल आप छोड़ दो, कितने भी घंटे पढ़ो। If you talk about myself, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुंबई में रहता हूँ, बहुत टाइम ट्रेवल में निकल जाता है, तो मेरे को हार्डली 3 to 4 आवर्स मिलते थे इन वर्किंग डे। और उसके बाद सैटरडे संडे को पढ़ता था, तो मैं अपना बताऊँ तो डेली आई रीड अबाउट 3 to 4 आवर्स, उसमें भी मैं बहुत बार गैप ले लेता था। उसके अलावा सैटरडे संडे में आई यूज टू रीड अबाउट 6 आवर्स इन सैटरडे एंड संडे, 6 to 6। उसके बाद वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि जब आपका प्रीलिम्स या मेंस क्लोज आएगा तो आपको उस वक्त आपको ये नहीं सोचना कि कितने घंटे हैं, उस वक्त आपको पूरा देना है। आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो उस वक्त आपको 10 घंटे देने हैं। अगर आप वर्किंग डे में 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो उस वक्त आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे, कैसे भी करके। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कैसे भी अपना टाइम मैनेज करो। तो ये मेक श्योर करना कि आप शुरू में, चाहे आप आपके पास कम वर्कलोड ज्यादा हो प्रोफेशनल लाइफ का, या फिर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो जितना दे पा रहे हो उस पर कंसिस्टेंट रहो, डेली रहो, ठीक है। कंसिस्टेंट रहोगे तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। उसके बाद जैसे एग्जाम क्लोजर आए 2 to 3 मंथ्स, उसके बाद आप अपना आप 200% देना स्टार्ट कर लोगे। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन, ये एग्जाम आपको क्रैक तो कर देगा अगर इफ यू अटेम्प्ट इट एंड इफ यू आर नॉट क्लियरिंग इट, इट विल क्रैक यू। मेंटल हेल्थ का बहुत इश्यूज हो जाते हैं, तो आई थिंक
मोटिवेशन इज मच मोर नीडेड। मोटिवेशन की डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक यू कैन हैव स्पिरिचुअल सोर्सेज लाइक प्रेमानंद महाराज जी आई यूज्ड टू फॉलो। यहाँ के उनके जो भाषण उनके वो होते थे, प्रवचन होते थे, वो मैं सुनता था। इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि फिर मैं प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो करने लग जाता था। तो उसके बारे में वो आप कर सकते हो। सेकेंडली, सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये एग्जाम कर रहे हो तो क्या पर्पस है इस एग्जाम का? इस एग्जाम का शुड बी पर्पस पर्सनल गेन नहीं हो सकता। इट शुड बी अ पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस। इट शुड बी पब्लिक ओरिएंटेड बिकॉज इट्स अ पब्लिक सर्विस। तो वो भी आपको करना है कि आपके दिमाग में हो कि यार मुझे आई नीड टू चेंज समथिंग इन सोसाइटी। मेरे घर के आसपास ये सारी इल्स है, ये खत्म होनी चाहिए, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो वो झील रहनी चाहिए आपके अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, खत्म करना है मुझे। तो उससे थोड़ा बहुत सेल्फ मोटिवेशन आता रहेगा आपके पास। ओके, देन हाउ टू मेक टाइम टेबल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई थिंक you all should make timetable. Without timetable, your studies will go here and there. So timetable is very important. Timetable मैं कैसे बनाता था? I have some long term targets and short term targets. Long term targets में broad target रहते थे। If I talk about polity, तो polity में मैं target बनाता था कि लक्ष्य का मेरे को 15 days में complete कर लूंगा। उसके बाद मैं short term target बनाता था, that is 7 day target। 7 day target में मैं बनाता था कि हर दिन मुझे कितना पढ़ना है। लाइक on day one I read to these topics, day two this। और फिर नाइट में सोते वक्त यू विल चेक इट कि आप डे वन में कंप्लीट कर पाए, नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे करना है आपको। ये नहीं सोचना कि कंप्लीट नहीं करना, कंप्लीट नहीं हो रहा है। और यू शुड मेक रियलिस्टिक टारगेट। थोड़ा हो सकता है आप ज्यादा बनाओ, लेकिन क्लोज टू रियलिस्टिक रखना टारगेट, बिकॉज इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल। डिमोटिवेट कर सकता है कि आपका कुछ हो नहीं रहा है। तो वो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी टारगेट रखो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक रखो और उसको फॉलो करो। एक दो दिन का स्पेयर टाइम रखें, एक दो दिन का बीच में गैप रखें, जिसमें आप जितना भी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कर सकें। ओके, सोशल मीडिया यूजेज यार, आई एम वर्किंग। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ। तो सोशल मीडिया मुझे चलाना पड़ता था, व्हाट्सएप में चलाता था, इंस्टाग्राम ऑल्सो वाज एक्टिव इंस्टाग्राम। बट जैसे ही एग्जाम करीब आता था, मैं सोशल मीडिया से लीव ले लेता था। मैं इंस्टाग्राम में रहता नहीं था। तो इससे बेटर कि सोशल मीडिया से आप सब दूर रहो, क्योंकि दूसरों की लाइफ देखने से थोड़ा बहुत तो कभी कभी जेलसी फील हो ही जाती है हर इंसान को। दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो इट्स बेटर या तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आपको इतना इन्फ्लुएंस ना करे कि सोशल मीडिया, या आप वहां पे नहीं पहुंच पा रहे तो द सॉल्यूशन इज टू डिक्रीज योर सोशल मीडिया टाइम। आप देख सकते हो, अगर है तो दिन में एक दो बार यूज कर सकते हो विद लिमिटेड 10 to 20 मिनट्स। अगर नहीं है तो इट्स बेस्ट कि आप सोशल मीडिया यूज ना करें। और आप उससे अच्छा आप कोई न्यूज पेपर या फिर कुछ और चीजें आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं और टाइम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आते हैं कि दिल्ली आना है प्रिपरेशन के लिए या नहीं। तो देखो, दिल्ली का हवा बना रहे हैं, दिल्ली आना जरूरी नहीं है। मैं दिल्ली नहीं गया, बहुत सारे मेरे दोस्त दिल्ली नहीं गए जो सेलेक्ट हुआ। और अभी इस डिजिटल एरा में जब सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, बेस्ट कोचिंग इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कुछ इंटरनेट पे है, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी पॉइंट टू कम टू दिल्ली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। हाँ, आप जब इंटरव्यू में हो जाए, इंटरव्यू में जाने वाले हो तो उससे मॉक इंटरव्यू देने आप दिल्ली आ सकते हो। कोई प्रीलिम्स होने के बाद टेस्ट सीरीज देनी है तो आप आ सकते हो। ये आप कर सकते हो, लेकिन आप जहाँ भी हो वहाँ पे आप रिलाई करो, वहाँ पे पढ़ो, अपना एक पीयर ग्रुप तैयार करो जो पीयर ग्रुप आपके साथ पढ़ाई कर रहा हो। और आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि दिल्ली में एक एटमोसफेयर मिलेगा पढ़ने का, तो दिल्ली में नेगेटिव थिंग्स भी है, दोनों चीजें हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव्स भी है। वहाँ पे बाहर रहना, ये रहना, बहुत सारे नेगेटिव्स भी है। तो अब जब सब कुछ ही अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आई थिंक यू ऑल शुड थिंक अबाउट इट कि क्या दिल्ली जाना सही रहेगा। और अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो वो सब आप सोच के ही डिसीजन लीजिए। और मैंने अपनी प्रिपरेशन दिल्ली से बिल्कुल नहीं किया। आई एम लिविंग एग्जाम्पल कि दिल्ली से बिना करे भी आपका हो जाता है। नाउ नाउ आई जस्ट वांट टू गिव सर्टेन टिप्स टू सर्टेन पीपल। तो मैंने आइडेंटिफाई किए जो 4 टाइप ऑफ पीपल जो इस वीडियो को सुनेंगे या सुन रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे कॉलेज स्टूडेंट है, जो अभी कॉलेज में है और वो सोच रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने का, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि इफ यू आर इन कॉलेज, सो मेक श्योर कि यू आर एम्प्लॉयबल इन इंडस्ट्री। आपको कॉलेज अच्छे से करना है,
कॉलेज में अच्छा स्कोर करना है ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोनली रिलाई किया यूपीएससी के लिए और अपने कॉलेज का पूरा टाइम यूपीएससी को दे दिया, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं की और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी इतनी नहीं बनी। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप हो सके जितना हो सके आप कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय करें, कॉलेज के सब्जेक्ट्स को पढ़ें और अपने आप को एक एम्प्लॉयबल बनाए, क्योंकि यूपीएससी हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है यार। उसमें हो या ना हो, बहुत बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है बहुत ज्यादा। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, इसलिए कॉलेज को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जियो, बिकॉज दोस डेज विल नेवर कम इन फ्यूचर। ठीक है। अगर आप अच्छे कॉलेज से हो, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए कॉलेज में, और आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एक जॉब लेके ही जाए अपने कॉलेज से। अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि इस कॉलेज से हमें नौकरी नहीं लगेगी, तो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम शुड गिव टू कॉलेज। उसके बाद यूपीएससी में जितना आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, बट लिमिटेड पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आते ही आपने यूपीएससी को अपना पूरा टाइम दे दिया। जैसे लिटिल बिट रिलैक्स, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कॉलेज लाइफ में, और यंगस्टर बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। व्हेन यू पास आउट फ्रॉम कॉलेज यू विल सी कि आप लग जाओगे आराम से। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है उसके बाद। तो दिस इज माई एडवाइस फॉर कॉलेज स्टूडेंट। सेकेंड इज जिस जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है आदमी, तो उनके लिए मेरा एडवाइस है, गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ लास्ट अटेम्प्ट। ओके, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट की तरह आप दीजिए, फुल अपनी मेहनत डालिए। कॉलेज से आप बाहर आ चुके हैं, अब आपको निकालना है 2000 या 2026 वाला, उसके लिए आप 100% दीजिए। जितना हो सके अपना टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करें। आपकी जितने भी सोर्सेज है उसको लिमिट करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं जिसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं। अपना एक पीयर ग्रुप बनाइए जो कि सीरियस एस्पिरेंट का हो, उनसे बार बार बात करिए। जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है कि यार ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, उन लोगों से थोड़ा अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि दिस फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट। तो आप ऐसे पढ़िए, तो क्योंकि एक बार अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट अगर होगा भी, गॉड से भी नहीं हो, बट अगर होगा भी तो इट विल बी इजियर फॉर यू। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से दीजिए। अदर देन दैट, शायद ही शायद ही कोई होगा जो फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद देख रहा होगा, बट इफ एनीवन वाचिंग दैट आफ्टर फोर्थ अटेम्प्ट, तो आई हाईली एडवाइस कि आपका प्लान भी जो आपने बनाया होगा या जो आप बना रहे हो उस पर आप फोकस करें। आप 60% टाइम आप यूपीएससी को दे सकते हो, बट 40% टाइम आपको प्लान बी में देना ही चाहिए। आप आप यूपीएससी को बहुत ज्यादा चैलेंज मत करिए। आपने जितनी तैयारी की है 4 साल में उतनी बहुत अच्छी है, अब आप 60% लेके भी आप यूपीएससी निकाल सकते हो अगर निकल सकता है। बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। तो आप ट्राई करिए कि प्लान बी का एग्जीक्यूट पैरेलल आप कर सकें। एंड फोर्थ वन जो अभी मीन्स 2025 पीपल जिन्होंने अभी प्रीलिम्स क्लियर किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। उनकी मेरी ये एडवाइस रहेगी कि ज्यादा भटके ना। कोई अगर बोल रहा हो कि ये करना ही पड़ेगा मेंस के लिए, ये लिखना ही पड़ेगा मेंस के लिए, ये होता ही है मेंस के लिए, कुछ टेंशन नहीं लेनी है। मैंने मेंस निकाला है विदाउट जीएस राइटिंग। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, आई हैव चेंज माई ऑप्शन फ्रॉम मैथ्स टू सोशियोलॉजी। ठीक है, आई एम ऑल्सो मैरिड, तो मैंने सब कुछ निकाला है। एवरीबडी टोल्ड मी कि नहीं निकल सकता, ऑप्शन चेंज किया, आपने शादी की है या वर्किंग प्रोफेशनल हो, फिर भी निकला मेरा। तो दूसरों की बात में नहीं आना, चाहे आपके ऑप्शन का पेपर भी हुआ ही नहीं है तो भी दूसरों की बात नहीं सुनना, आप करोगे। पेपर ए ऑप्शन का नहीं हुआ तो भी आप करोगे, जीएस के कुछ टॉपिक छूट हुए तो भी आप करोगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, किसी और की बात में नहीं आना कि ये इम्पॉसिबल है, दोस्तों या फिर कलीग्स की बातों में नहीं आना कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, तुमने तो कुछ ही नहीं किया, तुमने तो सिर्फ फिल्म की पढ़ाई किया। इन इस 3 महीने 86 डेज 85 डेज आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। आपको फोकस करना है सिर्फ एक ही चीज पे कि मुझे मेल्स लिखना है अपना बेस्ट। मेल्स में हो या ना हो, दैट मेल सब्जेक्टिव होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो आगे अच्छा करेंगे, लेकिन आपको मेल्स अपना 100% देना है। टेस्ट सीरीज में कितने भी कम नंबर आए आपके, आपको ध्यान नहीं देना है। मेरे टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आए थे, फिर भी मेरे फाइनल मार्क्स बहुत अच्छे हैं। इट्स गुड एग्जाम्पल कि आप भी फाइनल में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलाइए कि यार जब मैं जाऊंगा फाइनल पेपर देने तो मैं अच्छा करूंगा, चाहे टेस्ट सीरीज में कितने भी नंबर आ रहे हैं, जब भी मैं फाइनल जाऊंगा आई विल स्कोर वेरी हाई। तो ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड में चलना चाहिए। These are my 4 tips. These are my tips for different kind of people. So I think that's all from my side.
नाउ आई विल आंसर योर क्वेरीज। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, तो आईबीसी फॉर्मेट में कर रहा हूँ, सो आई डोंट नो अबाउट आईबीसी फॉर्मेट, सो ओके। So how to prepare for UPSC? I have already answered. And okay, what makes the four papers of mains difficult? Papers are not difficult. It's like it is very competitive. Okay, so around 9 to 10 lakh people are giving this UPSC exam. तो पेपर टफ नहीं होता। पेपर जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पेपर आपको नॉर्मली लगेगा। लिखने की क्रिएटिविटी जो आपको लानी है वो आपको टाइम से आ जाएगी। तो इतना मत सोचिए कि पेपर टफ है, पेपर आसान है। प्रिपरेशन से पहले इतना नहीं सोचना चाहिए। आप प्रिपरेशन करो, आप जब राइटिंग करेंगे अपने आप पेपर आपके दिमाग में घुसेगा और आप क्रैक कर लोगे। आई डोंट हैव एनी टेलीग्राम आईडी। You can join others toppers. They are the toppers of 2024 have created multiple Telegram IDs. So आप किसी में भी enroll हो जाइए, बहुत अच्छे guidance कर रहे हैं। I am not created because I will be not able to give my 100% to you guys। और मैं बनाऊंगा भी तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए I don't want to waste your time। तो आप किसी ऐसे पर्सन को चुने जो अच्छा बता सके, आपके साथ लग सके, तो वो बेटर होगा रेदर देन कि मैं अगर बीच में छोड़ दूँ। तो इसलिए मैंने अभी तक वो डिसीजन होल्ड पे रख रखा है। अगर मैं बनाऊंगा तो आई विल शेयर विद यूपीएससी टाइम, वो आपको शेयर कर दूंगी उनके चैनल पे। सूरज बेस्ट कोचिंग, आई डोंट नो अबाउट इट। कोचिंग सारी अच्छी है। आप ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में आपको दिल्ली कोचिंग भी सारी मिल जाएगी। कोचिंग के पीछे तो मत भागिए। कोचिंग के अलावा बहुत और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लाइक सेल्फ स्टडी। तो उस पर ज्यादा फोकस करिए, खुद पे फोकस करिए रेदर देन रिलाइंग ऑन कोचिंग। ओके, आई शेयर माय ऑप्शनल एंड माय ऑप्शनल स्ट्रेटेजी। ओके, for interview language you can have an option to give interview in English, Hindi, another language। uh, I have opted for English, but interview का environment is very good। अगर आपको इंग्लिश में वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो यू कैन स्पीक इन हिंदी एज वेल। बट ट्राई करिए इंग्लिश में बोलने का। वो जो भी इंटरव्यू पैनल होता है, दे आर ट्राइंग टू नो यू, दे ट्राई टू नो यू बाय योर आंसर्स। तो ऐसा फील मत करिए अगर आपकी इंग्लिश गंदी होगी तो आपका इंटरव्यू गंदा जाएगा। दे सोली जज बेस्ड ऑन योर आंसर्स। वो हिंदी इंग्लिश पे जज नहीं करते, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। I plan. So when user asks plan B क्या था आपका, so I am employed, I am working professionally in Indian Oil, so I was very sure कि मुझे plan B रखना है, and I recommend each of you to have a plan B। ठीक है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है और यूपीएससी में आने से पहले भी एक प्लान भी आपको रखना है। यूपीएससी में अगर हो तो भी प्लान भी रखना है। ठीक है, जॉब के साथ बिल्कुल आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने किया, मेरे दोस्तों ने किया, बहुत लोगों ने किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट बट यू नीड टू गिव योर 100%। ओके, यू नीड टू डू मैनी मोर सेक्रीफाइसेस। लाइक आपके बाहर अगर आपकी ऑफिस वाले लेके जा रहे हैं तो यू नीड टू अवॉइड दैट। अगर आपकी पार्टी हो रही है तो यू नीड टू अवॉइड दैट। दीज आर सेक्रीफाइसेस यू नीड टू डू। अगर आपके पास टाइम कम है तो सेक्रीफाइसेस आपके बढ़ जाते हैं। ओके, mine was fourth attempt। Uh, तीन अटेम्प्ट में मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, and this attempt ऑप्शन was सोशियोलॉजी। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद लिंक करने में प्रॉब्लम हो रही है, सर आई विल रिकमेंड ईच ऑफ यू कि इतना टेंशन मत लो। ये प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, इतना टेंशन मत लो। आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो, लिखने का ट्राई मत करो। लिखने का क्यों ट्राई करो, बस यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसके बाद आप देखो, पढ़ो, टॉपर्स की कॉपीज देख लो या कुछ और देख लो। आप एनसीईआरटी पढ़ के लिखने जाओगे तो इट विल कंफ्यूज योर सेल्फ, आप लिख ही नहीं पाओगे आंसर्स। क्योंकि आंसर्स में आपको आपका माइंड पहले खुलना जरूरी है कि आप क्या क्या लिख सकते हो, कितने डायमेंशन खोल सकते हो, क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो।
rather than after NCERT reading आप पढ़ने लग जाओ उससे रहते try to complete major portions of ये सब्जेक्ट उसके बाद आप पढ़ो विदाउट न्यूज़पेपर रीडिंग यूपीएससी क्लियर हो सकता है कुछ भी हो सकता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू टॉपर्स कुछ भी बोले कुछ भी हो सकता है विदाउट न्यूज़पेपर मैंने निकाला है बट आई हाईली रिकमेंड कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए उससे आपका पर्सनली डेवलपमेंट होता है बेसिकली मेरे पास टाइम की पॉसिबिलिटी इससे मैं पढ़ नहीं पाता था रेगुलरिटी नहीं हो पाती थी लेकिन आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए सर शुड आई सिट फॉर college placement since I have decided to appear in UPSC? Definitely you should. कॉलेज से प्लेसमेंट लो आप कैसे भी करके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप प्लेसमेंट लेके भी आप प्लेसमेंट चुन सकते हैं तो प्लेसमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो एंड आई रिकमेंड कि प्लेसमेंट के साथ आप 6 मंथ टू 1 ईयर आप काम कर सकते हो ठीक है फिर उसके बाद साथ में आप प्रिपेयर करो क्योंकि इनिशियली इतना प्रेशर नहीं होता फ्रेशर्स में साथ में आप प्रिपेयर करो और फिर 1 ईयर के बाद यू कम टू यूपीएससी उसके बाद ताकि आपके पास फॉल बैक प्लान होगा अगर आप यूपीएससी को नहीं भी होता है आपका तो आप वापस उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच सबसे पहले आप यूट्यूब है आप सबके पास तो यूट्यूब में सब कुछ है हम आपको टॉपर स्टॉक दे रहे हैं इतने सारे चैनल्स है कोचिंग के चैनल्स है आप पहले उसको पढ़ो उसमें स्ट्रेटेजी पढ़ो उसके सोर्सेज पढ़ो ऑनलाइन सोर्सेज पढ़ो enrolling in any coaching is not mandatory okay self study is best if you are very less time enrolling in coaching is only helps building in your timetable अगर आप खुद से टाइम टेबल बना सकते हो खुद सिंसियर हो तो कोचिंग की जरूरत नहीं फाउंडेशन की दैट्स सो बुक्स टू कवर बेसिकली मैंने तो 2 ही बुक्स पढ़ी थी जो मैंने आपको बताई है बाकी टॉपर्स खूब सारी बुक्स पढ़ते हैं अब अदर टॉपर्स टॉप्स नहीं जो बुक्स पढ़ रहे हैं मैंने बुक्स इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे लगा कि मैं एफिशिएंटली विदाउट रीडिंग बुक्स में एफिशिएंटली स्कोर कर सकता हूँ टॉपर्स के नोट्स पढ़ सकता हूँ इसलिए मैंने टॉपर्स की नोट्स पे हाईली रिलाई किया बुक्स में मैंने ओनली मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ी एंड लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी I have taken coaching for mains, mainly the quality improvement program जिसमें मेंस का पढ़ाते हैं ठीक है और मेंस की टेस्ट लेता उसमें भी मैं वीडियो नहीं देखता था मैं उनकी पीपीटी पढ़ लेता था हाँ तो पीवाई की यूपीएससी थीम्स कैसे रिपीट होती है तो देखो थीम कैसे रिपीट होती है लेट मी गिव एन एग्जांपल जैसे एक थीम है फंडामेंटल राइट्स की एक थीम है ब्रॉड थीम है फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन आ जाता है उसमें एक सब थीम है राइट टू लाइफ के क्वेश्चन आ सकते हैं राइट टू लाइफ में एक मल्टीपल इश्यूज रेज हो सकते हैं तो उस थीम पे एक मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको लिंक करके कि रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली केस हुआ है उस पे क्वेश्चन पूछ दिया तो वो थीम तो आपकी फंडामेंटल राइट वाली रहेगी तो उसमें आपको आंसर करना है फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 21 के हिसाब से तो ऐसे बहुत थीम्स है और आपको ये मिल जाएगा आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाएंगे तो पीवाई की थीम वाइज आपको मिल जाएगा फंडामेंटल राइट हो गया डीपीएसपी हो गया दीज आर द थीम्स मल्टीपल थीम्स जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन सेम नहीं आते रिपीट होते हैं तो बहुत थीम रिमेन सेम प्रॉपर कॉपीज कैसे एनालाइज करना चाहिए देखो सबसे पहले तो आपको आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है आपको अपने जितना भी आप मेजर सब्जेक्ट्स है वो पढ़िए उसके बाद टॉपर्स की कॉपीज तो चाहिए उसको पढ़िए क्वेश्चंस पढ़िए और खुद सोचिए कि आप कैसे लिखते हो एक पीस ऑफ पेपर लीजिए पेन लीजिए उसमें लिखिए कि इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से सब पार्ट कीजिए फर्स्ट टाइम बहुत गंदा होगा उसको फिर बाद में ये सब होने के बाद आप टॉपर्स का कॉपीज पढ़िए उसमें क्या क्या लिखा है उस कंटेंट और अपने कंटेंट को कंपेयर करिए आपको लगेगा फर्स्ट टाइम की ड्रास्टिक चेंज है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है तो उसको बार बार देखिए अलग अलग टॉपिक्स को देखिए तो अपने आप उस इंक्रीमेंटल अप्रोच में आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा आंसर राइटिंग में यस सो आई थिंक ऑल ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड एंड आई अगेन वांट टू से कि यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी है किसी कोई बहुत कम लोग लकी होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं दे आर वेरी टैलेंटेड और दे आर वेरी लकी एज वेल सो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू बी highly recommend you all to have a plan B मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि प्लान बी आप रखिए यार क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है तो दिमाग में हमेशा प्लान बी रखिए
जितना यूपीएससी की ग्लैमरस लाइफ है, आपके टॉपर स्टॉक्स दिखते हैं, टॉपर्स की एंट्रीज दिखती है, उस सब पे मत जाइए। बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। तो आपका हमेशा प्लान भी रहता है, बिकॉज यू नीड टू सर्वाइव, यू नीड टू हैव अ फैमिली, आपको आगे काम करना ही पड़ेगा। तो जब भी आए आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो प्लान बी लेके आए। ये मेरा एक रिकमेंडेशन आप सभी को। So, so I'm closing this live session. Thank you all for attending this session. I hope all of you will be selected in next prelims or this prelims, next prelims or this prelims. Thank you, everyone.